وہ گائیڈ مسلمان مچھیرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دونوں کمانڈوز بھی مسلمان ہیں مگر ہندو بن کر آئے ہیں اور بھاونگر اپنے خاص آدمی کے پاس ہندو بن کر ہی جائیں گے۔ اس کا اصلی نام مسلمانوں والا تھا جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ بھاونگر میں کیا کاروبار کرتا تھا اور اس کا دفتر کہاں پر تھا۔ میں اسے دکاندار ظاہر کروں گا اور اس کا ہندوانہ نام بھی آپ کو فرضی بتاؤں گا۔ اس کا وہ ہندوانہ نام نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ آج بھی بھاونگر میں بیٹھا، یعنی دشمن کے پیٹ میں بیٹھا اس کے پاکستان دشمن عزائم کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ پاکستان تک پہنچا رہا ہے، اور یوں موت کے منہ میں بیٹھا وطن عزیز کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس محب وطن کے اصلی مسلمانوں والے نام بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کا وہ ہندوانہ نام بھی نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ وہاں 25 سال سے بیٹھا کاروبار کر رہا ہے۔ میں اس کا فرضی ہندوانہ نام چندرکانت رکھ لیتا ہوں۔ عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے گائیڈ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے دھرم داس اور دیوی رت اپنے نام رکھے ہیں۔ گائیڈ نے کہا، ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو اور زبان پر چڑھا لو، اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تو مارے جاؤ گے، بلکہ تم ایک دوسرے کو انہی ہندوانہ ناموں سے بلایا کرو۔ اپنا آدمی جو 25 سال سے بھارت کے ساحلی شہر بھاونگر میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا تھا اور اس نے اپنا نام چندرکانت گجراتی مشہور کر رکھا تھا، اس کے بارے میں عمران اور جبران کو بھی پورے طور پر بریف کر دیا گیا تھا، یعنی اس کی فوٹو بھی پاکستان میں انہیں دکھا دی گئی تھی اور اس کا اصلی اسلامی نام بھی بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا باشندہ ہے اور اس کا کوڈ نام شاہ جی رکھا گیا ہے۔ لیکن عمران اور جبران کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زیادہ تر اسے چندرکانت یا مہاشی جی کے نام سے ہی بلائیں۔ پاکستان کا یہ گمنام محب وطن جانباز جس کا کوڈ نام شاہ جی اور بھارت میں جس کا نام چندرکانت تھا، 1971 کی جنگ کے فوراً بعد گجرات کاٹھیا واڑ کے مشہور شہر احمد آباد سمگل کر دیا گیا۔ وہاں اس نے گجراتی زبان پر عبور حاصل کیا اور 4-5 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھاونگر کے بندرگاہی شہر میں آ گیا، اور عین اس مقام پر جہاں اندر کی طرف آیا ہوا سمندر ختم ہوتا تھا اور جہاں کھاڑی کے ایک ممنوعہ علاقے میں انڈین نیوی کے جنگی اور طیارہ بردار جہاز وکرانت اور میسور اور رنجیت آبدوز شکن فریگیٹ جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے، اس نے اس بندرگاہ کے عقب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ہم اس کاروبار کی نوعیت آپ کو نہیں بتائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک عام قسم کا کاروبار تھا جس کی شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کو خصوصی طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا۔ دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے ماتا پتا بمبئی میں رہتے تھے۔ وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے۔ وہ بمبئی میں پیدا ہوا، پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا۔ ابھی 10 برس کا تھا کہ ماتا پتا سورگ باش ہو گئے، یعنی مر گئے۔ ایک رشتہ دار نے اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ بڑا ہوا تو بمبئی واپس چلا گیا اور اپنا آبائی کام کرنے لگا۔ وہاں کاروبار نہ چلا تو بھاونگر میں آ گیا جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا۔ وہ ایک خاص مشن لے کر بھاونگر آیا تھا۔ اس کا کام آبنائے کی کھاڑی میں انڈین نیوی کے طیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی اور ان کے خفیہ اڈوں کا سراغ لگانا تھا۔ جب وہ بھاونگر میں آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں تھا، صرف جنگی جہاز تھے۔ پھر انڈیا نے ایک طیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر 80 طیارے اترتے اور چڑھتے تھے۔ انڈین نیوی نے سن 65 کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور آبدوز شکن تباہ کن جہازوں میں بہت اضافہ کر لیا تھا۔ اسی وقت انڈین نیوی کے پاس ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 7 بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، 50 آبدوز شکن فریگیٹ اور تقریباً نصف درجن بڑے جنگی جہاز تھے جن کی نمائش جنگی مشقوں میں انڈین نیوی کی طرف سے ہوتی رہتی تھی۔ متفرق جنگی جہاز 20 تھے اور 3 فلیٹ ٹینکر تھے۔ مارچ 1975 میں انڈین نیوی نے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر بمبئی اور کوچین کے ساحلوں سے دور جنگی مشقیں بھی کی تھیں۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی انڈین نیوی کی بحری قوت اور اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ تیار کر کے خفیہ نقطوں کی زبان میں لکھ کر پاکستان برابر بھیجتا رہتا۔ یہ کام اسے انتہائی خفیہ طریقے اور بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس قدر خطرناک کام تھا کہ ذرا سی غفلت اسے انڈین نیوی کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر سکتی تھی اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتا تھا۔
लेकिन वो ये काम रजाकाराना तौर पर वतन पाक की मोहब्बत, उसकी सालमियत और उसके इस्तेहकाम के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि भारत की हिंदू हुकूमत ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से तस्लीम नहीं किया और वो उसे खत्म करने के नापाक अज़ाइम रखती है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का अपने हल्के में बड़ा असर व रसूख था। उसने अपने आप को जैन मत का पैरोकार जाहिर किया हुआ था और जानवरों के अस्पताल के लिए हर माह एक खास रकम बतौर चंदा देता था। जैन मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करता था। माथे पर जैनों का सफेद तिलक हर वक्त लगाए रखता। किसी नशे को कभी हाथ नहीं लगाया था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे खतरा था कि अगर उसने शादी की तो जाहिर है किसी हिंदू औरत से ही शादी करेगा और यूं उसके मुसलमान होने का राज फाश हो जाएगा। उसने मशहूर कर रखा था कि मैं जैनी महात्मा वर्धना जी के नक्श कदम पर चलते हुए सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। मोहल्ले में लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। हिंदुओं में बैठकर वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोला करता था और कहा करता था कि हमें भारत माता के उस टुकड़े को जो उससे जुदा कर दिया गया है फिर से जोड़ना है। सियासत में वो सिर्फ देशभक्त था और किसी खास सियासी जमात से मुंसलिक नहीं था। ना वो गोश्त खाता था, ना सिगरेट शराब पीता था। इस तरह उसने सरकारी हलकों में भी एक खास सतह पर काफी असर व रसूख पैदा कर लिया था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का ये तारुफ बड़ा जरूरी था, क्योंकि हमारे दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान उसी के पास जा रहे थे और उसी ने उन्हें आगे के मिशन के सिलसिले में गाइड करना था। अब हम वापस अपने जांबाजों के पास आते हैं, जो अपने गाइड की रहनुमाई में भावनगर की खाड़ी से काफी पीछे रात की तारीकी में साहिल पर उतर चुके हैं। साहिल पर उतरने से पहले उन्होंने कश्ती के खुफिया खाने में से अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्टल निकालकर लिबास के अंदर छुपा लिए। हिंदुस्तान में अभी बरसात का सीजन शुरू नहीं हुआ था। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम था, लेकिन गुजरात काठियावाड़ के इलाके में सिर्फ रात को ठंड हो जाती थी। गाइड ने बताया कि दिन के वक्त यहाँ गर्मी होती है और समंदर के करीब जो इलाके हैं वहां हब्स भी हो जाता है। गाइड 2 कदम आगे चल रहा था। अंधेरे में एक तरफ कई झोंपड़ियां थीं। ये माही गिरों की झोंपड़ियां थीं। ये लोग उन झोंपड़ियों से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। खाड़ी वाली बंदरगाह और खाड़ी के समंदर में खड़े 1-2 जहाजों की रोशनियां नजरों से ओझल हो गई थीं और अब भावनगर शहर की रोशनियां नजर आने लगी। ये रोशनियां काफी दूरी पर दाएं जानिब थीं। गाइड उन रोशनियों की तरफ बढ़ रहा था। ताड़ी के सुतूनों जैसे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़े के पास आकर हमारा गाइड रुक गया। कहने लगा, आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं। ये हसास इलाका है। रात के वक्त पुलिस गश्त पर होती है। थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं। दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख करेंगे। झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं। दोनों थके हुए थे। चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गाइड ने उन्हें जगा दिया। यहां से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थीं। हर किस्म का ट्रैफिक रवां था। दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे। किसी को उन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए, जहां से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े 2-1 जहाजों के मस्तूल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहां इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज है। जंगी जहाज यहां से नजर नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसके दोनों जानिब ढलवान छतों वाले मकान खड़े थे। उस सड़क पर दुकानें नहीं थीं। दफ्तर बने हुए थे, जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक 2 मंजिला बस उनके करीब से होकर गुजर गई। उसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बेद की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी हुई थी। दीवार पर जैन मत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे कार्नस पर फूल पड़े हुए थे और लोबान सुलग रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। उसके पास एक अधेड़ उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुक कर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जबान में प्रणाम किया।
चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती जबान में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जिब्रान गौर से शाजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। उनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था। छोटी छोटी मूछें और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। उसने खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। सर पर शुतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जबान में ही कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौके पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। चंद्रकांत ने कहा, बैठ जाओ। ये मछेरे कौन हैं? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडोज लाया है जिसके बारे में उसे पेश की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करनी जरूरी थी। गाइड ने इमरान और जिब्रान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में ही कहा, वर्मा जी आप देसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं। ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। उस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी वॉस्कट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर देसाई सेठ की दुकान की तरफ चल दिया। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब उसने इमरान और जिब्रान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडोज हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है। तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जबान में एक जुमला बोला। उसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जिब्रान को मुखातिब करके कहा। जिब्रान को भी खुफिया कोड बताया गया था, चुनाचे उसने भी खुफिया जबान में ठीक जुमला दोहराया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और कहा, तुम अपने काम पर वापस जाओ। मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडोज के बारे में इत्तला दी गई थी ये वही हैं। इसकी तस्दीक हो गई है। इमरान और जिब्रान ने भी तस्दीक कर ली थी कि ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 बरस से दुश्मन के मोर्चे में बैठा अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फोटो पाकिस्तान से रवाना होते वक्त उन दोनों को दिखा दी गई थी। गाइड ने कमांडो इमरान और जिब्रान से हाथ मिलाए और वहां से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद लंबी दुकान में बना हुआ शाजी उर्फ चंद्रकांत का दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां उन तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं था। चंद्रकांत ने पंजाबी में दोनों से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए पंजाबी जबान में ही जवाब दिया, जब आबदोज हमें समंदर पर निकालने के लिए पानी से बाहर आई थी तो उस वक्त जरूर खतरा था कि कहीं दुश्मन का द्वारका रेडार स्टेशन हमें देख न ले, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। शाजी उर्फ चंद्रकांत ने पंजाबी में इमरान से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, हमारे बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि हमारा क्या प्रोग्राम है। चंद्रकांत ने कहा, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं। कमांडो इमरान बोला, हमारे मिशन का खुफिया नाम मिशन यू बोट 29 रखा गया है, यानी मिशन आबदोज 29। चंद्रकांत यानी शाहजी ने अपनी ऐनक के शीशे रुमाल से साफ करते हुए कहा, ये मुझे मालूम है। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूं कि तुम में से आगे कौन जाएगा और यहां कौन रहेगा। इमरान ने कमांडो जिब्रान की तरफ इशारा किया और कहा, कमांडो जिब्रान यहां पीछे रहेगा, मैं यानी कमांडो इमरान आगे जाऊंगा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने ऐनक आंखों पर लगाई, मैला सा रुमाल वॉस्कट की जेब में डाला और कहा, क्या तुम्हें इस हकीकत का एहसास है कि तुम्हें किस कदर अहम और किस कदर खतरनाक मिशन पर भेजा गया है? कमांडो जिब्रान ने पंजाबी जबान में ही जवाब दिया, शाहजी, हम अपने वतन पाकिस्तान की इज्जत नामूस और इस्तेहकाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुल्क में आए हैं। मौत हमारी जेब में है। वो किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर हमें दबोच सकती है, लेकिन हम ये अहद करके आए हैं कि अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं मरेंगे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत का चेहरा संजीदा था। इमरान ने कमांडो जिब्रान के हुब्बुल वतनी के जज्बे की तायद करते हुए कहा, हम तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी सारी कश्तियां जलाकर दुश्मन के मोर्चों में आए हैं। हम उस वक्त तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाता। शाहजी उर्फ चंद्रकांत के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी छाई रही। इमरान सोचने लगा कि ये शख्स वाकई बड़ा मुतहम्मिल मिजाज आदमी है।
यूं ही 25 साल से दुश्मन के पेट में बैठा वतन पाक के लिए खतरनाक तरीन जासूसी नहीं कर रहा। इस आदमी को ऐसा ही ठंडे मिजाज का संजीदा आदमी होना चाहिए था। अब चंद्रकांत इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, तुम जब यहाँ से आगे अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का खुफिया पैगाम रसानी का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पास खुफिया पैगाम रसानी के लिए वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। याद रखो, एक कमांडो जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खुफिया ट्रांसमीटर होता है, जिस पर वो खुफिया कोड जबान में अपने मुल्क को रेडियो सिग्नल भेजता है। ये गलती कभी न करना। भारत कोई दकियानूसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये एक जदीद और आला टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है और अब एटमी ताकत भी बन चुका है। इसके लिए खास तौर पर हसास इलाके में अजनबी सिग्नल्स पकड़ना और ये मालूम करना कि ये रेडियाई सिग्नल कहां से नशर हो रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं। कमांडो इमरान ने कहा, मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं हूं, लेकिन आपको जब कोई रिपोर्ट या पैगाम पाकिस्तान भेजना होता है तो आप कौन सा जरिया और कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। शाहजी उर्फ चंद्रकांत एक दो लम्हे इमरान को देखता रहा, फिर अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर बंद करते हुए बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता और आइंदा इस किस्म का अहमकाना सवाल मुझसे करना भी नहीं। इमरान ने फौरन माजरत पेश कर दी, बोला, आई एम सॉरी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो जिब्रान से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे पास रहोगे लेकिन मैं तुम्हें अपने मकान पर नहीं रख सकता। शहर से बाहर मेरा एक छोटा सा स्टोर है जहां मेरा सप्लाई का माल पड़ा होता है। उस स्टोर के साथ ही चौकीदार के लिए एक कोठड़ी बनी हुई है। इत्तेफाक से मेरा पुराना चौकीदार शदीद बीमारी की वजह से काम छोड़कर अपने गांव जा चुका है। तुम वहां बतौर नए चौकीदार के स्टोर की हिफाजत करोगे और रात को कोठड़ी में रहोगे। करीब ही एक कॉलोनी है, वहां छोटे छोटे होटल भी हैं, वहां तुम्हें खाने पीने की हर शय मिल जाएगी। फिर वो इमरान से मुखातिब होकर कुछ कहने लगा तो पार्टीशन की शीशे की खिड़की में से देखकर बोला, कोई बात न करना। वो उठकर बाहर चला गया। इमरान और जिब्रान ने शीशे की खिड़की पर निगाह डाली। एक गेरुए कपड़ों वाला साधु टाइप का आदमी दुकान में दाखिल हुआ। चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और गुजराती में बोला, महाराज, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। और उसने जेब से कुछ सिक्के निकालकर साधु के हाथ में तांबे का जो प्याला पकड़ा हुआ था उसमें डाले और हाथ बांध कर कहा, महाराज, इसे स्वीकार करें। साधु ने हाथ उठाकर शाहजी उर्फ चंद्रकांत को आशीर्वाद दिया और दुकान से निकल गया। चंद्रकांत वापस आकर बोला, आज मंगलवार है, ये लोग तांबे के प्याले में तेल डालकर दक्षिणा लेने आते हैं। उसने एक नजर खिड़की के शीशे पर डाली, वहां से बाजार में गुजरते लोग नजर आ रहे थे। चंद्रकांत ने इमरान की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहां सोगे। कल सुबह सुबह तुम अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे। इमरान ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। फिर उसने कमांडो जिब्रान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इमरान को ऊपर छोड़कर आता हूं, उसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।